ہوتی ہے, کیک وغیرہ ہیں اور دیگر وہ اسپیشل ٹوسٹ بنتا ہے خاص رمضانوں کے لیے. اور لوگ پسند کرتے ہیں, بھوپال کے لوگ جو ہیں وہ انہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. باقر خانی ہے, پراٹھے ہیں, شیرمال ہے, کیک ہے, ٹوسٹ ہیں اسپیشل والے, ان چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. صاحب تیاری تو بہت دنوں سے چلتی ہیں اس کی, رمضانوں میں خاص طور سے زیادہ رہتی ہیں. سوئیاں تو اپنی یہی بنتی ہیں, اور جگہوں سے ہی منگانا پڑتی ہیں. الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے, اس کے بعد تھوڑا گراہک کو جو اچھا لگتا ہے وہ دے دیتے ہیں سامنے. اس کی تیاری چلتی ہے کہ رمضان کے 15-20 دن پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں تیاری. پھر اس لیے وہ لی جاتی ہے, اس میں ہوتا ہے وہ میندا, اس کو اپن وہ دودھ میں ڈال کے کھاتے ہیں تو پیٹ میں مطلب کھچاؤ پن نہیں ہوتا ہے. ایک ایسا لگتا ہے ہم کچھ کھائے ہوئے ہیں تو خشک نہیں ہوتا پیٹ, اس لیے پھیری وہ بکتی ہے, کھائی جاتی ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں, اور آج ہم موجود ہیں آپ کے شہر بھوپال میں. ناظرین اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اپنے عزیزوں کو اور دوستوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں. میسج بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجیے RKR, اپنا نام اور شہر کے نام کے ساتھ اپنا پیغام ہمیں بھیج دیجیے 56263579 پر. فی الحال ناظرین وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا, جائے نہیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. Match on. पांडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा. افطار کی فضیلت, خصوصی دعائیں, افطار کے طبی فوائد اور نعت پاک کا نذرانہ. ہندوستان کے مختلف شہروں سے افطار ٹائم لائیو, روزانہ شام 5 بجے, صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سہیلی دی ڈیزائنر ویئر, لال بازار, ڈولی چوکی. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر, افطار خاص بنائے. ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا. اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو. سحری کی فضیلت, افطار کی رونق, ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ, اکثر رسوئی, پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے, صرف ETV اردو پر. اکثر رسوئی, پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر, افطار خاص بنائے. تعاون کر رہے ہیں سویٹس, آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے. انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا. میلاز سکن کریم, ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں. ناظرین رمضان صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل عبادت ہے, اور بھوپال جسے اس کی اسلامی تہذیب کے لیے بغداد الہند کہا گیا ہے, یہاں پر اس کی مکمل روایت دیکھنے کی ملتی ہے. کیا اس کی وہ روایت, آئیے ڈالتے ایک نظر. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا تھا. قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ رہنمائے ہدایت ہے. سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور مومن ہر دن 5 وقت کی نماز ادا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے. لیکن ماہ رمضان کی عبادت اور ثواب کو اللہ نے
اور دنوں کی عبادت سے 70 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے۔ ایسے میں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کی قربت حاصل کرے۔ ماہ رمضان کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس لیے ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں اس سے ایسا کوئی کام سرزد نہ ہو جس سے اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے۔ علماء دین ماہ رمضان میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ سے بار بار تلقین کرتے ہیں۔ علماء دین کا ماننا ہے کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اصلاح معاشرہ کا عظیم کام لیا جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو اس کے اندر اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب سے زمین اور آسمان بنائے ہیں، مہینوں کی تعداد 12 قرار دی ہے۔ ان 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے بعض مہینوں کو اشہر حرم احترام والا مہینہ قرار دیا ہے، وہ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ لیکن ان مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، جو عظمت عطا فرمائی ہے، خود اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے لیے منتخب فرمایا، اور قرآن کے بارے میں خود کہہ دیا قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، وہ تمام انسانیت کے لیے ایک راہ ہدایت نامہ ہے، اور اس کے اندر بینات من الہدی والفرقان فرمایا حلال الحرام، جائز ناجائز، ضلالت اور ہدایت، اچھا اور برا، صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز کے درمیان میں فرق کرنے کی اس کے اندر واضح تعلیمات موجود ہیں۔ فرمایا اتنی عظمت والی کتاب جس کو اللہ نے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جو کہ لوح محفوظ میں تھی، اور اللہ نے اس کو جب انسانیت کے لیے سپرد کرنے کا یا انسانیت کی ہدایت کے لیے نزول کا اللہ نے ارادہ فرمایا، تو اس کے لیے اللہ نے رمضان کا انتخاب فرمایا۔ اسلام کی ہر عبادت کے اندر اصلاح ہے، پورے معاشرے کی بھی، انسان کی اپنی ذاتی بھی، اور ذاتی بھی یہ بھی کہ جسمانی بھی اور روحانی بھی، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو یا رمضان کے روزے ہوں۔ آدمی اپنے آپ کی اوور ہالنگ کر لیتا ہے، صرف روزہ ہی نہیں رکھتا، اپنے کھانے پینے کے اوقات کو کنٹرول میں کر کے اپنی اوور ہالنگ کرتا ہے، اور روحانی فائدہ یہ ہے کہ اسے خدا کی بات ماننے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ خدا نے ہر جاندار کو، بالخصوص انسان کو، کھانے پینے کا اختیار دیا ہے، اپنے لیے کھانا فراہم کرنے کا پورا موقع دیا ہے، اور اس کے ٹائم ٹیبل بھی اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ میں یہاں یہ بات عرض کروں گا کہ جہاں رمضان کے روزے کے ٹائم ٹیبل مقرر ہیں، رمضان کے علاوہ بھی کھانا کھانے کے ٹائم ٹیبل قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں۔ صبح اور شام کا ذکر ہے، صبح کے کھانے کا اور رات کے کھانے کا ذکر ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان جس طرح کھانا کھا کر اپنی صحت بناتا ہے اور اپنے دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے، اسی طرح روزہ رکھ کر بھی اپنی روحانی صحت بناتا ہے، اپنی اندرونی صحت بناتا ہے، اور اپنے دل اور دماغ کو طاقت بخشتا ہے۔ روزہ دراصل اللہ کی اس اطاعت کا نام ہے جس میں بندہ مومن اللہ کے حکم پر ایک خاص وقت کے لیے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور جب وقت افطار کا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے افطار کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ نے امت مسلمہ پر نماز اور روزے کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ اور فطرے کی ادائیگی کا حکم بھی دیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو غریب اور نادار ہیں انہیں بھی خوشی کے مواقع حاصل ہو سکیں۔ ماہ رمضان قرآن کے نزول کے جشن کا مہینہ ہے۔ قرآن عالم انسانیت کے لیے رہنمائی ہدایت ہے۔ اس کی تعلیمات کسی ایک عہد، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے ہیں۔ جس نے بھی قرآن کو سینے سے لگایا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا، اس نے گویا دونوں جہاں میں
कामयाबी हासिल की। एक इस्लाह का पहलू इनफरादी इस्लाह का और इज्तिमाई इस्लाह का रोज़े के अंदर पाया जाता है, और इस एतबार से भी ये एक बेहतरीन इबादत है कि इसमें हर वक्त आदमी अल्लाह को हाजिर नाजिर समझता है। वैसे तो आम दिनों में भी समझना चाहिए, लेकिन रोज़े में उसे खाने की ज़रूरत है, उसे पीने की ज़रूरत है, लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल के तहत अपने को काबू में किए हुए खाता पीता नहीं है। वो समझता है और यकीन करता है कि अल्लाह उसे देख रहा है। काश कि पूरी ज़िंदगी इसी फार्मूले के तहत गुजर जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो एक इंसान ही की इस्लाह नहीं, पूरे समाज की, पूरे देश की और पूरी दुनिया की भी इस्लाह मुमकिन है। इसके आखिरी हिस्से में यानी आखिरी अशरे के अंदर शब क़द्र रखी गई हैं। शब क़द्र तो एक ही होती है, लेकिन वो शब क़द्र की रातें ताक़ रातों के अंदर हुक्म दिया गया है कि शब क़द्र की ताक़ रातों के अंदर शब क़द्र को तलाश करो। वो ताक़ रातें हैं 21 रात, 23 रात, 25 रात, 27 रात और 29 रात। इन रातों में किसी भी रात में शब क़द्र होती है, तो इस शब क़द्र को 1000 महीने की इबादत से अफजल फरमाया गया है। तमाम अहले ईमान इसका अहतमाम करते हैं और रोज़ा रखते हैं और रातों को इबादतें करते हैं, ताकि अल्लाह ताला की रहमत में, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत में, अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम के अंदर सब शामिल हों। यहाँ और इस भोपाल में और पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर चाँद की तारीख़ों के एतबार से रमज़ान शरीफ शुरू होता है और रमज़ान शरीफ ख़त्म होता है। उसके बाद ईद उल फ़ितर आती है और ईद उल फ़ितर भी रमज़ान के रोज़ों के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का एक मुबारक खुशी का महीना है। इस मुबारक खुशी के महीने के अंदर खुशी करने का और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का और शुक्राने के तौर के ऊपर नमाज ईद अदा करने का हुक्म दिया गया है। इस मरतबा 15 घंटे के रोज़े होंगे, लेकिन ऐसा शौक़ और जज्बा मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर, बच्चों के अंदर होता है कि वो उस शौक़ की वजह से इस तकलीफ़ का एहसास ही नहीं होता रोज़े के अंदर कि हम भूखे प्यासे हैं, और जो होता है तो उससे ये एहसास पैदा होता है कि हमारे भाई जो भूखे हैं। इसी वजह से और इस्लाम के अंदर अहम तरीन चीज़ ये है कि उचकना कूदना ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। हज फ़र्ज़ किया गया तो एक नमाज और पढ़ो, रमज़ान की अदायगी हुई तो एक नमाज और अदा करो कि अल्लाह ताला के सामने सरनगू हो, और जब भूख का एहसास हुआ तो आप गरीब की मदद करो। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ की है, यानी जो भी आपको दिया है अगर उसके ऊपर 1 साल गुजर गया और वो आपके कब्ज़े में है तो उसके ऊपर 40% यानी 1% 40 में से देना है। 100 रुपये में 2.5 रुपये ज़कात बहुत कम है, लेकिन ये ऐसा निज़ाम है कि अगर इसकी दुनिया में तदबीक कर दी जाए तो फिर आदमी यानी आप ज़कात लिए फिरेंगे, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। भोपाल को नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों के शहर के नाम से तो सभी जानते हैं, लेकिन ये मस्जिदों का भी शहर है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इस छोटे से शहर में 460 मसाजिद के बावजूद माह रमजान में नमाजियों की इतनी कसरत होती है कि मसाजिद अपनी तंगदामनी की शिकायत करती हैं। यही वजह है कि इस मुबारक महीने में सड़कों और घरों की छतों पर भी नमाज तरावीह का एहतमाम किया जाता है। माह रमजान में नमाजियों की कसरत जिस तरह से होती है, इसका असर साल के दूसरे महीने पर भी देखने को मिलता है। बंदा मोमिन माह रमजान को मुसलमानों के लिए ट्रेनिंग पीरियड मानते हैं, इसलिए इस मुबारक महीने में अपने शब रोज का ज्यादा से ज्यादा वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगाते हैं। नमाजियों के इस रूह परवर मंजर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि माह रमजान में बंदा मोमिन न सिर्फ दिन भर रोजा रखकर अल्लाह की हम्दो सना करता है, बल्कि इसको आम दिनों की इबादत से अलग हटकर 20 रकात नमाज तरावीह भी अदा करना होती है। लेकिन जब बंदा मोमिन अल्लाह से दिल लगाता है तो ये 20 रकात नमाज तरावीह उसे ग्रां नहीं गुजरती, बल्कि वो अपने रब के कुर्ब की लज्जत से सरशार होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وإلا لكم ما وراء ذلك ما تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فالذين هاجروا فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. जब रमज़ान का महीना आता है और जैसे ही चांद दिखाई देता है तो पूरी मसाजिद के अंदर माशाल्लाह कुरान पढ़ने पढ़ाने का एक माहौल कायम हो जाता है और फिर ईमान वाले इसकी कोशिश करते हैं कि हम जमात के साथ तरावी के साथ कुरान को सुने. तो इसलिए जो पूरा ये इस्लामी माशरा है, इस्लामी जो इस्लामी सोसाइटी है, तमाम फ़र्द, क्योंकि उसको मालूम है कि अब ये रमज़ान का महीना चल रहा है और किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी का भाई पढ़ रहा है, किसी का भतीजा पढ़ रहा है, तो एक जज्बाती ताल्लुक़ भी होता है. तो कुरान से, रमज़ान से पढ़ने वाले साथ होता है तो एक माशाल्लाह मस्जिदें भर जाती हैं. और जैसा कि आपने कहा कि मस्जिदें अपनी वसअत के बावजूद तंगदामनी का शिकायत करने लगती हैं. इसकी वजह यह है कि माशाल्लाह पूरे इस्लामी माशरे का एक एक फ़र्द मस्जिद के अंदर आ जाता है. तकरीबन पूरा हिंदुस्तान घुमा हुआ हूँ, लेकिन जितना मज़ा रमज़ान का भोपाल में आता है और जो एहतमाम तरावी का भोपाल में होता है वैसा मैंने कहीं पे भी नहीं देखा. और इसीलिए हम लोगों के इतनी 398 मस्जिदें हैं, उसमें सबसे बड़ी मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है ताजुल मसाजिद, वो भी है. तकरीबन सारी मस्जिदों में तरावियों का एहतमाम होता है और वहाँ पे भी मस्जिदें पूरी फुल हो जाती हैं. इसलिए अपने अपने मोहल्लों में भी अपने अपने जहाँ पे जगहें लोग कराने जाते हैं वो लोग सब कराते हैं तरावियाँ. तो इसी तरह हमारे यहाँ पे भी तरावी हो रही है, तरावी का एहतमाम किया गया और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है रमज़ान का. नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं आपके शहर भोपाल में. नाज़रीन, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपने अजीज़ों और दोस्तों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें मैसेज कीजिए. मैसेज भेजने के लिए टाइप कीजिए RKR अपना नाम और शहर के नाम के साथ हमें भेज दीजिए 56263579 पर. फिलहाल नाज़रीन, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है, पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही. अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो. काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी. अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है. अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ. जेडीए का प्रयास जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना. सुना है प्यार में घंटियां बजती है. तुम झूठ बोल रहे हो. शहनाइयां बजती है. मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ. ढोल नगाड़े बजते हैं. यस, पर मेरा तो बैंड बज गया. आपकी बहन बहुत अच्छी लड़की है सर. आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया. यही बात अगर मैं इंग्लिश में कहता तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं. करो इबादतें, मिलेंगी इनायतें. हुआ है नुज़ूल कुरान इस माह में. रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही. कोलकाता से जी. रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते. साथ ही नाते पाक का खूबसूरत नजराना. बुला मेरे मौला. लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर. इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट. तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस.
भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन, रमज़ान की बात की जाए और बाजार की बात ना की जाए तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। भोपाल में जहां रमज़ान के पहले अशरे से ही बाजार में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि बारिश की वजह से माहौल कुछ सर्द नज़र आ रहा है। क्या इसकी वजह, आइए डालते एक नज़र। माह रमज़ान की बात हो और ईद की तैयारियों की बात न की जाए, ये कैसे हो सकता है। रमज़ान में इबादत के साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं। भोपाल के दुकानदारों को ईद के बाजार का साल भर इंतजार रहता है। भोपाल में ईद के लिए कुछ खास बाजार सच कर तैयार हैं। इनमें चौक बाजार, नदीम रोड, न्यू मार्केट, जिंसी चौराहा के नाम काबिले जिक्र हैं। कहने को महंगाई है, लेकिन बहुत से दुकानदारों को इस महंगाई के बावजूद अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। इसी उम्मीद पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर हिंदुस्तान के दूसरे शहरों के अलावा बैरून मुल्क के सामान से भी अपनी दुकानों को सजाया है, ताकि खरीदार एक बार दुकान पर आने के बाद बगैर खरीदे हुए वापस न जा सके। आजकल जैसे कि फैंसी फुटवेयर चलते हैं, ज़्यादातर डिज़ाइनिंग वेयर, वर्क वाले, शादियां भी हैं अगले महीने से, शादियों के बाद तो उसकी भी तैयारी हो रही है और इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं हर तरीके से। और मार्केट आगे धीरे धीरे, अभी तो पिछले महीने से बहुत स्लो था, अब धीरे धीरे उठ रहा है, तो उसकी वजह से आगे और अच्छा रिस्पांस मिलेगा और बहुत बढ़िया वैरायटी हर जगह मेंटेन करके रखी है हमने। अब के हमारे बिल्कुल यूनिक और बहुत ही अच्छी रेंज हमने दबंग स्टाइल में और पठानी भी बहुत अच्छे स्टाइल में हमने तैयार करवाए हैं कि जो हम अपने कस्टमर को, अपने ग्राहकों को उनको दे सकें। और हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है और लखनवी का एक अलग ही वो है। रमज़ान में हमारे इस भोपाल में हमें उसका बहुत अच्छा वो मिलता है इसको। हमारे ईद के मौके पे जो है माह मुबारक के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड जो है चिकन की रहती है, लखनवी की। उसके अंदर आपको बेहतरीन आइटम मिल जाएंगे। चिकन के जरदोजी वर्क के आइटम हैं, एप्लिक वर्क में है, हैंड वर्क का पूरा आइटम मिल जाएगा आपको। ये जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, क्या इसका असर पड़ेगा कहीं? हाँ, यकीनन सर, वो तो चारों तरफ ये चीज़ देखने को मिल रही है। जो पीस जो है हमें तकरीबन जो है एक पीस पे 50-50 रुपये पीस का वहीं से फ़र्क लगा है। बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखते हैं और हमारे साथ अल्लाह है और अल्लाह सबका ख्याल रखता है। ये आज के ये ईद की पर्पज़ के हिसाब से इस बार नई चीज़ आई है, ब्रास मेटल के कड़े। ये चार उसके ऊपर नई चीज़ आई है। ये कस्टमर को ये मतलब ये साइडों में लगाए जाएंगे, उसकी बेस में नई चीज़ आई है। लव आजकल की उसके ऊपर उस बेस पर ये चूड़ी आई है। लव आजकल के नाम से बिक रही है ये चूड़ी। और ये कमीने के उस पर करीना कपूर ने पहने का, तो उसके उस नाम से ये ब्रेसलेट आ गए हैं। ये नई चीज़ आई है, ये खाद के पर्पज़ के हिसाब से कमीने के उसके ऊपर इस टाइप की चीज़ें नई आई हैं, ब्रेसलेट इस पर। और इस टाइप के सेट आए हैं, देखिए मेटल के। इस बार ईद के ऊपर सबसे ज़्यादा फैंसी आइटम आया इस टाइप का, नई चीज़ सबसे ज़्यादा चलेगी है फैंसी उस पर। इसमें सारे का ग्राहक हर तरह का कलर लेगा इसके ऊपर। तकरीबन 20 एक तरह के समथिंग कलर आए इसके ऊपर। आमतौर पर मुल्क के दूसरे शहरों में माह रमजान के आखिरी अशरे में बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन भोपाल में रमजान के पहले अशरे से खरीदारी शुरू हो जाती है। इसके लिए
रोजेदारों के अपने जवाज हैं और इनका मानना है कि आखिरी अशरे के आते आते अच्छे माल छट जाते हैं, इसलिए वो पहले ही खरीदारी कर लेते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अल्लाह ने आखिरी अशरे में शब कद्र रखी है, इसलिए वो आखिरी अशरे को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगाना चाहते हैं। घर वालों की सारी लिस्ट तैयार है, सामान उनका खरीदते फिर रहे हैं और फिर सब पूरे रमज़ान की तैयारी है। पूरे महीने भर कितना इंतजार रहता है इस महीने का? पूरे साल जिस दिन ईद होती है फिर दूसरे रमज़ान का अभी से इंतजार शुरू हो जाता है कि अब रमज़ान ये गए हैं, अब कब लौट के आएंगे। रमज़ान चल रहे हैं, हम रोजे भी रख रहे हैं और साथ साथ ईद की तैयारी भी चल रही है और हम जल्दी जल्दी खरीदारी करना चाह रहे हैं ताकि हम वो रमज़ान में इबादत कर सकें और ईद को अच्छे से मना सकें। इस बार ईद में क्या पहनने का फैसला किया आपको? हमने इस बार पठानी सूट लिया है हमने और लखनवी टोपी ली है और बस वो पहन के हम ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे। मैं कुर्ते पजामे लेने आया था सर, यहाँ पे इसलिए लेने आया हूँ, यहाँ जो है ईद तक माल जो है छड़ जाता है, इसलिए पहले ख़रीदारी कर लूँगा तो अच्छा रहेगा, वैरायटी मिल जाएगी, उसमें ये रहेगा मामला। भोपाल में ईद के मौके पर खवातीन में सबसे ज्यादा डिमांड सिल्क के कपड़ों पर सीप सितारे, मोती, जरदोजी से बने हुए कपड़ों की होती है, तो मर्दों में पाजामा और कुर्ते की डिमांड, जिनमें सबसे ज्यादा लखनवी कुर्ते पाजामे की डिमांड है। दुकानदारों ने रमजान के एक महीने से पहले ही अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जूते चप्पल की दुकान हो या चूड़ियों की दुकान, सब पर खवातीन की भीड़ इस कदर दिखाई दे रही है कि पहले अशरे से ही रास्ता चलना मुश्किल हो रहा है। मैं ईद के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, रमज़ान शुरू हो गए, ईद तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और मैं हमेशा यहीं से सूट लेके जाती हूँ और ये इतने ग्रेसफुल लगते हैं यहाँ के सूट, तो मैं यहीं से लेती हूँ सबसे ज़्यादा। तो मैं सूट के लिए एक्साइटेड रहती हूँ और दूसरी ईदी के लिए ख़ास बस ज़्यादातर तो इबादत का मौका मिलना चाहिए रमज़ान में, इसलिए परचेजिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरी कर लेनी चाहिए। इसलिए लखनवी सूट अपने हस्बैंड के लिए, बेटी के लिए फ़्रॉक और अपने लिए लखनवी फ़्रॉक, ताकि वो बहुत ग्रेसफुल लुक देता है लखनवी सूट पहनना। तो कुछ पिछले साल से डिफरेंट करने की कोशिश? हाँ, पिछले साल से डिफरेंट है ये। पिछले साल अलग तरीके की वैरायटी थी यहाँ पर, इस बार अलग तरीके की वैरायटी है, तो वो इसलिए अलग अलग चीज़ें पहननी चाहिए, तो इस बार नई जो वैरायटी आई है उसको ट्राई करेंगे। यहाँ रमज़ान हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, अभी वहाँ से क्लोथ खरीद कर आए हैं अपनी ईद के लिए और ये सैंडल्स खरीद रहे हैं अब हम। तो क्या खास तैयारियां हैं ईद पर? कुछ नए कपड़े तैयार करें, कुछ नई वैरायटी? जी, हमने इस बार न्यू क्लोथ्स लिए हैं और उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स दिखाए थे, तो हमने उसमें एक स्पेशल क्लोथ चूज़ करा है उसमें और हमने उसी को सिलेक्ट करा है जो हमें पसंद आया था। ईद की तैयारियों की बात हो और खुशबू के साथ टोपियों का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है? इत्र फरोशों ने जहां मुल्क और बैरून मुल्क से इत्रियात का एक बड़ा कलेक्शन जमा कर रखा है, वहीं बाजार में मुख्तलिफ अकसाम की टोपियों की भी भरमार है। किसी को बांग्लादेशी टोपी पसंद है तो किसी को तुर्की, तो किसी को रामपुरी टोपी, तो किसी को इंडोनेशिया की टोपी पहनकर नमाज पढ़ना है। भोपाल के बाजार में इत्र की सैकड़ों वैरायटी के साथ परफ्यूम की भी बड़ी वैरायटी देखने को मिल रही है। इत्र फरोशों ने कुछ खास इत्रियात के मजमुए भी तैयार किए हैं। हम ज़्यादातर इत्रियात खुद बनाते हैं और बेचते हैं। इस बार क्या खास बनाया है? इस बार हमारे यहाँ का इत्र फरिश्ता, इत्र गुलदस्ता, इत्र सहरा, इत्र असवद और इत्र शाहीन, ये हमारा अपना प्रोडक्ट, हमारा अपना। इस बार जिस तरह रमजान में महंगाई चारों तरफ बढ़ी हुई है, आपको इस पर क्या फर्क पड़ा? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। परफ्यूम स्मेल के अंदर ये साजिद रेन वाजिद परफ्यूमर्स की तरफ से जो है लेटेस्ट लास्टिंग वाले जो है बहुत अच्छे परफ्यूम स्मेल में इत्र आए। इसके अंदर इत्र जो है आफरीन है, इत्र सानिया है, इत्र दिलशाद है, इत्र फ़िज़ा है, ये जो है बहुत चल रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं, इसकी स्मेल काफ़ी रहती है। नाज़रीन, भोपाल वो शहर है जिसे उसकी इस्लामी तालीम के सबब तारीख़ के औराक में बगदादुल हिंद कहा गया है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल जब यहाँ पर आए और उन्होंने सहर के वक्त यहाँ की मसाजिद से उठने वाली आज़ान को सुना तो ये कहा कि वो सहर जो कभी फ़रदा कभी इमरोज़, नहीं मालूम की होती है कहाँ से पैदा, वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है।